چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ فیض الحسن ملتان، علی نواز کا تبادلہ لاہور اور نعیم احمد کو بہاولپور تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان تبادلوں میں فیض الحسن ملتان، علی نواز کا تبادلہ لاہور جبکہ نعیم احمد کو بہاولپور تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ پی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کو پہلے سے سخت سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ جناب پیشہ عناصر کی حوالے سے تمام مسائل بھی بروئے کار لائے جائیں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مجاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مجاہد۔ ہاں جی بالکل، پی ایس ایل سیکورٹی لا اینڈ آرڈر صورتحال لاہور پولیس جو ہے وہ پیشگی اقدامات کر لیے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کے میچز سیکورٹی لا اینڈ آرڈر تحفظ عامہ منصوبہ بندی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایس پی سیکورٹی، ایس پی وی وی آئی پی سیکورٹی کی بھی شریک ہوئے اس موقع پر۔ جرائم پیشہ عناصر کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں، ایسا کہنا تھا ڈی آئی جی آپریشن کا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رہائی یافتہ مجرمان کی جو ہے وہ ڈور ناکنگ کی جائے، نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے۔ یہ اجلاس میں تمام چیزیں زیر بحث آئیں، اور شہر کے داخلی ناکوں پر چیکنگ کے بغیر کوئی بھی گاڑی لاہور شہر میں داخل نہ ہونے دی جائے۔ تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل ٹیمیں تشکیل دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کو گرفت میں لیا جائے، ایسا کہنا تھا ڈی آئی جی آپریشن کا۔ غیر قانونی گیس سلنڈر دکانوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پی ایس ایل کھلاڑیوں کو پہلے سے مزید سخت سیکورٹی فراہم کی جائے گی، یہ بھی ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا۔ کرکٹ میچوں اور آن لائن جوا کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی جاری رکھی جائیں۔ ایس پی صدر فالٹون، ماڈل ٹاؤن، سیول لائن اور ایس پی کینٹ اس موقع پر سرکل افسران اور ایس ایچ اوز بھی میٹنگ میں شریک ہوئے جی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین جاوید اسلم کی زیر صدارت پنجاب لائبریریز فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا ہے۔ بچوں میں کتب بینی کے فروغ کے لیے داستان گوئی پروجیکٹ کے آغاز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز جاوید اسلم کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کے تحت لائبریریز میں بچوں کے لیے تخلیقی داستان گوئی کے سیشنز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین جاوید اسلم کی زیر صدارت پنجاب لائبریریز فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں بچوں میں کتب بینی کے فروغ کے لیے داستان گوئی پروجیکٹ کے آغاز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی بالکل، یہ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کا داستان گوئی پروجیکٹ کا شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہوا ہے، اور چیئرمین بورڈ جاوید اسلم کی زیر صدارت 59واں اجلاس ہوا ہے۔ بچوں میں کتب بینی کے فروغ کے لیے داستان گوئی پروجیکٹ کے آغاز کی منظوری دی گئی۔ پروجیکٹ کے تحت لائبریریوں میں بچوں کے لیے دلچسپ، سبق آموز اور تخلیقی داستان گوئی کے سیشن منعقد کیے جائیں گے، یہ کہنا تھا چیئرمین بورڈ آف گورنر جاوید سلیم کا۔ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کا پرائمری اسکولوں میں لائبریریز کارنر کے قیام کا بھی فیصلہ۔ لائبریری کارڈ کی بدولت کم عمر بچوں کو بچپن سے ہی مطالعے کی جانب اغراض کیا جا سکے گا، یہ کہنا تھا چیئرمین کا۔ اقدامات کا مقصد بچوں کی تخلیقی اور تخلیق پروری، علم سے شغف اور کتاب سے وابستگی کو فروغ دینا ہے۔ سیکرٹری آرکائیو اینڈ لائبریری محمد خان رانجھا کی شرکا کو ای لائبریری منصوبے پر بریفنگ۔ محمد خان رانجھا نے صوبے میں قائم کمیونٹی لائبریریز کو فعال بنانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ دیہی اور نیم شہری علاقوں میں لائبریری کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے، یہ کہنا تھا سیکرٹری آرکائیو کا۔ ادارہ ترقی ادب کے سربراہ عباس تابش کی داستان گوئی پروجیکٹ میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ ادارہ تعلیم و آگاہی، ادارہ ترقی و ادب اور اردو سائنس بورڈ کے ساتھ اشتراک سے تعلیم، ادبی اور تربیتی سرگرمیاں ترتیب دینے پر اتفاق ہوا۔ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کا کمیونٹی لائبریریز کے فعالیت کے عملی اقدامات کا بھی فیصلہ۔ اجلاس میں سابق ڈی جی پی آر اطہر علی خان، کنول امین اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد حسین، ڈاکٹر نشین فاطمہ، رخشندہ کوکب اور بیلا جمیل نے شرکت کی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور نے داخلوں کا آغاز کر دیا ہے۔ داخلوں کا آغاز پنجاب بھر کے 7 شہروں کے 9 کیمپسز میں بیک وقت ہوا ہے، جبکہ تمام ڈگری پروگرامز میں داخلے کیے جائیں گے۔ امیدواران کے لیے فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ
27 जून रखी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ने फॉल 2025 के दाखिलों का आगाज पंजाब भर के 7 शहरों के 9 कैंपसेस में बेहतर शुरू किया गया है। फाल 2025 में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तमाम डिग्री प्रोग्राम में दाखिले किए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 23 जून 2025 रखी गई है। बाकायदा क्लासेस का आगाज 18 अगस्त 2025 से होगा। उम्मीदवारों की सहूलत के पेश नज़र दाखिले ऑनलाइन किए जाएंगे, ये कहना है तर्जमान का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात किसी भी वक्त जनूबी पंजाब की जानिब से गर्द-आलूद हवाएं दाखिल हो सकती हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। बताइए अली। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन कुछ कमी वाक़या हुई है। आज दिन भर लाहौर का दर्जा तकरीबन 37 से 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। शिद्दत जो सी वो 40 तक महसूस की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत गिरदोनवा में एक तो गर्दो गुबार का जो झक्कड़ चल रहा है वो जनूबी पंजाब से लाहौर की जानिब दाखिल होगा। उससे कुछ कहा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी वाक़या हो सकती है, लेकिन दिन के औकात में अगर धूप निकलती है उस सूरत के अंदर दर्जा हरारत की शिद्दत में इजाफा दिखाई देगा और लू भी चलेगी। डॉक्टर से ये कहना है कि अगर आपने बाहर निकलना है तो काला चश्मा इस्तेमाल करें, सर ढांप के रखें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को बिलखुसूस कहा जा रहा है कि इस लू से बचाने के लिए उनको दिन के औकात में कम घर से बाहर निकाला जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे गर्मी बढ़ते ही लेसो का सिस्टम भी तकनीकी खराबियों का शिकार होने लगा है। शहर में बिजली की आंख मचोरी ने अवाम को तड़पा कर रख दिया है। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तकनीकी खराबियों का शिकार। शहर में बिजली की आंख मचोली ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल। शालीमार, हरबंसपुरा, कैवेलरी ग्राउंड, वाल्टन रोड, मंसूरा, हंजरवाल और दीगर इलाके बिजली की बंदिश से मुतासिर। लेस्को जराये के मुताबिक सोलर प्रोडक्शन के बायस बिजली की तलब में दिन को कमी हुई। रात के वक्त शहर में बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में दिन के वक्त बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक है। शहर में रात को बिजली की तरफ 4200 मेगावाट तक जा पहुंची। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में लेस्को के तरसीली निजाम पर लोड बढ़ने से रात को तकनीकी खराबियां ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिससे घंटों बिजली बंद रहती है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। तारीख में पहली बार लाइव स्टॉक के लिए 20 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन कुरबानी का कहना है कि नई मोटर बाइक्स महकमा लाइव स्टॉक की इस्तादेगार में इजाफे का बायस बनेंगी। महकमा लाइव स्टॉक में वज़ीर आला पंजाब के वीएन के तहत प्योरिटी स्टाफ में मोटर बाइक्स की तकसीम के हवाले से तकसीम का इनेकाद किया गया है और सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक ज़राअत सैयद आशिक हुसैन कुरबानी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब अली अलील की डायरेक्टर जनरल की हमरा शिरकत। आशिक हुसैन कुरबानी का कहना है कि मोटर बाइक्स का डिज़ाइन पैरावेट्स की मुशावरत से तैयार किया गया है, जबकि स्टाफ को 7000 मोटर बाइक्स फ्राहम की जाएंगी और पहले मरहले में 3412 मोटर बाइक्स तकसीम की जा रही हैं। आपको बताएं कि अवाम रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबिक हुकूमत से नहीं बल्कि खुद से है। महकमा में करप्शन के एहतराफ़ करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मेरे होते हुए करप्शन होना अफसोसनाक है। मोहम्मद हसन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास 12 इजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की खुद मंजूरी दी। बाकी मानदा इजला के तरक्याती प्रोग्राम इंसदाद तजावज़ात ब्यूटिफिकेशन से मुतल्लिक इजलास मंगलवार को होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तजावज़ात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बड़ा चैलेंज है। कमिश्नर्स और डीसीज को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी, किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी साबिक हुकूमत से नहीं बल्कि खुद से है। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है, इसके खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। इजलास में तमाम तहसीलों के रोड्स, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। वज़ीर आला का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। लैंड एक्विजिशन के लिए अराजी मुतासिरीन को मार्केट रेट पर अदायगी। सरकारी अराजी की CCTV मॉनिटरिंग का हुक्म। गल्ला, फ्रूट और सब्जी मंडी की शहरियों से बाहर मुंतकली और यकसा तर्ज पर अपलिफ्टिंग की हिदायत। तमाम इजला में बिल्डिंग बाय लॉज पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। इजलास में फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान
मुल्तान, सियालकोट, डीजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान और गुजरांवाला के तरक्याती कामों की मंजूरी दी गई। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वसीम मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए हैं। खिते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी, जबकि पंजाब में जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला किया गया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास खिते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। ऑब्जर्वेटरी में जदीद खुदकार कम्युनिकेशन और लिंकेज सिस्टम नस्ब किया जाएगा। GIS लैब, सेक्टोरल इंटरफेस सिस्टम और जदीद डेटा हब का क़याम अमल में लाया जाएगा। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम, कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के क़याम की भी मंजूरी। इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की स्मार्ट ऑर्गेनिक ग्राम की तश्कील की भी हिदायत। वो कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निमटने का जामे प्लान दिया। ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। इजलास में बताया गया कि ऑब्जर्वेटरी से मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की बर वक्त पेशगोई, तज्ज़िया और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। मंसूबे के लिए बजट, आलात और जमीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली का इजलास वज़रा और सेक्रेटरीज की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन रहीना खातून ने अपोजिशन की धमकी को बिलाए ताक रखते हुए इजलास जारी रखा तो अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। हुकूमत लगातार 2 रोज़ कोरम पूरा करने में नाकाम रही। हमजा खुर्शीद के रिपोर्ट देखिए। 50 मिनट ताखीर से शुरू होने वाले पंजाब असम्बली इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरपर्सन राहीला खादिम हुसैन ने की। इजलास में महकमा माल से मुतल्लिक सवालात के जवाब दिए गए, जबकि सवालात पूछने वाले अरकान ही इजलास में मौजूद नहीं थे। सिर्फ एक रुकन अमजद अली जावेद के 2 सवालों के जवाब दिए गए और बाकी सारे सवालात निपटा दिए गए। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान सवालों जवाब का सेशन खत्म होते ही असम्बली से रवाना हो गए। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया तो जवाब देने के लिए कोई वजीर मौजूद न था। अपोजिशन ने चेयरपर्सन राहीला खादिम से आधे घंटे तक इजलास मुलतवी करवाकर वज़रा को ऐवान में बुलाने का मुतालबा किया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने कहा कोई वजीर मौजूद नहीं, इजलास जारी रखने का कोई फायदा नहीं। ताहम चेयरपर्सन राहीला खादिम ने इजलास जारी रखा, जिस पर अपोजिशन रुकन वकास मान ने कोरम की निशानदेही कर दी। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिस पर चेयरपर्सन राहीला खादिम ने इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास और कमेटी ने महकमा रेवन्यू से मुतालिक ऑडिट इतराज़ात का जायजा लिया है, जबकि लीज पर दी गई हुकूमती जायदाद की किराए की अदम वसूली का भी इंकशाफ हुआ है। हमजा खुर्शीद के ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में सैयद अली हैदर गैलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास MPA अदनान अफजल चट्ठा, MPA नीलम जब्बार चौधरी और MPA राना अब्दुल मनान समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। कमेटी ने महकमा रेवन्यू से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया। लीज पर दी गई हुकूमती जायदाद के किराया की अदम वसूली का इंकशाफ 2014 से 2025 तक 14.16 मिलियन रुपए जुर्माने अदा न हुए, 185.335 मिलियन टैक्स और 142 मिलियन रुपए लीज किराया की अदम अदायगी का इंकशाफ हुआ। कमेटी ने ज़ेरे इल्तवा रकूम की फौरी वसूली की हिदायत कर दी। 14 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। महकमा रेवन्यू के अफसरान बशमूल सेक्रेटरी कॉलोनीज, DG ऑडिट पंजाब और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने भी इजलास में शिरकत की। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवन्यू का इजलास स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 इजलास में पेश किया गया। तरमीमी बिल को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवन्यू का इजलास चेयरमैन मोहम्मद ओन जहांगीर की सरबराही में हुआ। इजलास में स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अब तरमीमी बिल ऐवान से रायशुमारी के जरिए मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद गैर मनकूला जायदाद की कीमत का कम तयन होने पर कमिश्नर को अपील दायर हो सकेगी। कमिश्नर 15 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। शहरी 2 साल तक स्टैम्प पेपर्स इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। जिला कोट अद्दू में 5 देहात की लीज पर दी गई सरकारी जायदाद की तफसीलात कमेटी में पेश करने की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवन्यू के मेंबर को कमेटी की जानिब से इजलास में हाजिरी लाजिम बनाने की हिदायत। इजलास में कमेटी सेक्रेटरी आमिर लियाकत चट्ठा, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ, एडिशनल डायरेक्टर लॉ, मेंबर टैक्सेस और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प ने शिरकत की। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।
पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025 तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मंजूर कर लिया गया है। बिल ऐवान से बज़रिया राय शुमारी मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास कमेटी चेयरमैन सफदर हुसैन शाही की क़यादत में हुआ। पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025 पेश हुआ। कमेटी ने पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस में मुजवजा तरामीम का जायजा लिया। अपोजिशन और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। बादस कमेटी मंजूरी बिल ऐवान से बज़रिया राय शुमारी मंजूर कराया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। अपोजिशन रुकन फरुख जावेद मून बोले, हुकूमत जो शिक्के नाकाबिल जमानत कर रही है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। मेरे 16 मुलाजमीन पर पहले ही जाली पर्चे हैं। ये शिक नाकाबिल जमानत हुई तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। PPP रहनुमा मुमताज चांग ने कहा, साउथ पंजाब में बगैर लाइसेंस असला रखना मजबूरी है। बाद अज बिल मंजूरी बगैर लाइसेंस असला रखने से मुतालिक मुतअद्दिद शिकें नाकाबिल जमानत होंगी। बाद अज बिल मंजूरी पंजाब में शूटिंग क्लब कायम किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि बिल का मकसद गैर कानूनी असला रखने की सजाओं में इजाफा करना और उभरते हुए सिक्योरिटी खदशात दूर करना है। मुसव्विदा कानून जाती दफा के हकूक और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने पर जोर देता है। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला और स्पेशल डायरेक्टर कानून भी मौजूद थे। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 40वां सिंडिकेट इजलास मुनक्किद हुआ। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। 39वीं सिंडिकेट इजलास के मिनट्स की मंजूरी भी दे दी गई है। इजलास के दौरान मेडिकल एजुकेशन और कम्युनिटी मेडिसिन में PhD जबकि हेल्थ प्रोफेशनल्स एजुकेशन में मास्टर्स के करिकुलम की मंजूरी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ पोस्टों पर 11 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की मंजूरी दी गई है। एडहॉक बुनियाद पर मुलाजमीन की तैनाती की मंजूरी दी गई है। गंगाराम अस्पताल को मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की ICU की 16 डायलिसिस मशीनों और 1 RO प्लांट जबकि CSSD मशीनों की मेंटेनेंस के टेंडर की इजाज़त दे दी गई है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम अमल दरामद तेज़ी से जारी है। शहर की 3705 गलियों में से 815 गलियों की बहाली का काम मुकम्मल। DC लाहौर ने तरक्याती प्रोग्राम्स का फ़ेज़ 1 मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम अमल दरामद तेज फ़ेज़ 1 मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन। प्रोग्राम के तहत शहर की 3705 गलियों में से 815 गलियों की बहाली का काम मुकम्मल। शहर में 2408 गलियों की तामीर बहाली का काम जारी है। 1573 गलियों में सीवरेज लाइन्स का काम होगा। निश्तर टाउन की 1850 गलियों में से 338 गलियां मुकम्मल कर ली गयी। रावी जोन में 634 में से 225 गलियों की तामीर मुरम्मत मुकम्मल। दाता गंजबख्श जोन की 1516 में से 136 गलियों की बहाली का काम भी मुकम्मल। गुलबर्ग जोन की 186 में से 35 गलियां मुकम्मल। समनाबाद की 144 में से 87 गलियां तामीर। शालामार जोन की 352 में से 44 गलियां मुकम्मल। 454 गलियों में PCCI कराई गई। 363 गलियों में टॉप टाइल्स लगा दी गई, जबकि 50 सड़कों पर असफाल्ट डाल दिया गया। 9 तामीर शुदा गलियों में नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की तस्वीर वाली इफ्तिताही तख्तियां लगा दी गयी, जबकि इलाका MNA और MPA का नाम भी शामिल किया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में तरक्याती काम तेज करने के लिए बड़ा पैकेज तैयार। रवा और आइंदा माली साल में अरबों रुपए की लागत से सड़कें, सर्विस रोड, वॉक वीज़ा और दीगर मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। LDA ने इन मंसूबों के लिए क्वालिफाइड फर्म से सहारे दिलचस्पी भी मांग लिया है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। LDA सिटी ने अपनी मेगा हाउसिंग स्कीम LDA सिटी के तरक्याती कामों के लिए बड़ा तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया। रवा और आइंदा माली साल के दौरान 10 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे LDA सिटी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबों के आगाज के लिए क्वालिफाइड तामीराती फर्मों से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिया ताकि जल्द अज जल्द तरक्याती सरगर्मियाँ शुरू की जा सकें। LDA सिटी का मेन चौक इंटरसेक्शन 9 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। जिना सेक्टर सतलुज रोड के साथ वाक़िया सर्विस रोड को 5 करोड़ 5 लाख रुपए से तामीर किया जाएगा। स्ट्रक्चर प्लान के तहत नीलम रोड के पैकेज 2 का काम 1 अरब 99 करोड़ रुपए से मुकम्मल किया जाएगा। नीलम रोड के पैकेज 1 का तामीराती काम 2 अरब 84 करोड़ रुपए में मुकम्मल होगा। इसी तरह दीगर काम मुकम्मल किए जाएंगे। इन तमाम तरक्याती सरगर्मियों का मकसद LDA सिटी को मुकम्मल आबाद हाउसिंग स्कीम की शक्ल देकर शहरियों को जदीद तर्ज रिहाइश मुहैया करना है। ज़राए के मुताबिक LDA सिटी के बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की तकमील से स्कीम के प्लाट मालिकान को फौरी कब्जा और तामीरात की इजाज़त मुमकिन हो सकेगी। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
सूबाई वज़ीर बल्दियात की ज़रिए सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि बरसात से कबल खुदाई का काम मुकम्मल किया जाए और स्टीयरिंग कमेटी के डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और MD वासव को टाइम लाइन पर अमल दरामद की हिदायत है। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी का मज़ीद कहना था कि खुदा के काम में शहरियों के लिए मुतबादल रास्ते का लाजमी ख्याल रखा जाए। मुकम्मल होने वाली गलियों की हिफाजत में शहरी भी ताउन करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब में मेयार का लाजमी ख्याल रखा जाए, पार्कों की बहाली और कब्रिस्तानों में सहूलियात की फ़हमी यकीनी बनाई जाए। लाहौर के शहरियों को वाटर सप्लाई और सीवरेज की बेहतर सहूलियात की फ़राहमी वास्ते के दायरे इख्तियार में गैर मामूली तोसी का फैसला किया गया है। शहरियों को सर्विसेज वास्ता की जानिब से फ़राहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर की तेजी से बढ़ती आबादी को मद्देनजर रखते हुए वासा के दायरा इख्तियार में तोसी का बड़ा फैसला किया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वासा के ज़ेरे इंतजाम 248 मुरबा किलोमीटर का रकबा अब 380 मुरबा किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, यानी मजीद 132 किलोमीटर मुरबा रकबा वासा को दिया जाएगा। फैसले के बाद वासा को मजीद 15,50,000 शहरियों को वाटर सप्लाई और सीवरेज सर्विसेज फराहम करना होंगी। वासा की मजमूई जिम्मेदारी में शामिल शहरियों की तादाद 1,03,20,000 हो जाएगी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट का रकबा 1,761 किलोमीटर मुरब्बा है, जिसमें से अब तक वासा 248 किलोमीटर मुरब्बे पर सर्विसेज फराहम कर रहा है। तोसी के तहत GT रोड, बाटापुर, जल्लो, गजुमत्ता, पुराना कहना, ठोकर न्याज बेग, हाजी कोट, नैनसुख, शादरा वासा के दायरा इख्तियार में शामिल कर दिए जाएंगे। वासा को नए इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, कनेक्शंस की तनसीब, ट्यूबवेल और ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग जैसे चैलेंजेस का सामना होगा, जिसके लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LTA टाउन प्लानिंग विंग गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक है। LTA ने मुख्तलिफ स्कीम्स और कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन करके 132 इमला सब मुहर कर दी हैं, जबकि LTA टीमों ने जौहर टाउन, शादमान, शाह जमाल, गुलशन रावी, न्यू मुस्लिम टाउन, UBD किनाल और फैसल टाउन, जबकि गार्डन टाउन, इलामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया है। LTA टीमों ने कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर खयाबान फिरदौसी रोड और जौहर टाउन में 22 इमलाक सील कर दी है। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर शादमान, शाह जमाल, गुलशन रावी, UBD किनाल रोड, न्यू मुस्लिम टाउन में 49 और फैसल टाउन, गार्डन टाउन में 39 इमलाक सरब मोहर कर दी हैं। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इलामा इकबाल टाउन में 22 इमलाक सरब मोहर कर दी हैं। DG LTA की हिदायत पर बिला इंतयाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर में पैदल चलने वाले अफराद के लिए हॉट स्पॉट्स बनाने का फैसला है। इब्तदाई 10 मकामात के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। यूटर्न्स और मसरूफ चौराहों पर पेडिस्ट्रियन जोन्स और स्पीड टेबल्स जबकि साइन बोर्ड्स भी नस्ब किए जाएंगे। हादसात में कमी और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का प्लान। टीपा का शहर की मरकजी शाहराहों पर पेडिस्टेरियन हॉट स्पॉट्स बनाने का फैसला। ये जोन्स ऐसे मकामात पर बनाए जाएंगे जहां पैदल अफराद की आमदोरफ्त ज्यादा है। टीपा के मुताबिक आइंदा माली साल में इब्तदाई 10 मकामात पर इन जोन्स के क़याम के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट तखमीना तैयार किया गया है। टीपा के इंजीनियर्स ने पहले मरहले में पाइन एवेन्यू पर इस मॉडल का कामयाब तजर्बा किया, जहाँ स्पीड टेबल्स, मुनासिब साइन बोर्ड, कैटाइज और राहगीरों के लिए मखसूस सिग्नल्स नस्ब किए गए हैं। मंसूबे के तहत स्पीड टेबल्स, कैटाइज, ट्रैफिक साइन बोर्ड, पेडिस्टेरियन सिग्नल्स तमाम हॉटस्पॉट्स पर लगाए जाएंगे। टीपा का मौक़िफ़ है कि जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैदल चलने वाले अफराद के लिए अलहदा जोन्स बनाना नागुज़ीर हो चुका है। मंसूबे की कामयाबी से न सिर्फ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि लाहौर का ट्रैफिक सिस्टम भी बेहतरी की तरफ गामजन होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए बड़ी सहूलत है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाहौर पर क्यासिक सेंटर बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए बड़ी सहूलत। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर क्यास सेंटर बनाया जाएगा। क्यास सेंटर से मुसाफिर फौरी तौर पर इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। CTO लाहौर अतर वहीद कहते हैं कि माल रोड पर 3 क्यास सेंटर बना दिए गए हैं। लाहौर में 100 के करीब क्यास सेंटर्स कायम करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि एक इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के ऊपर भी लगा रहे हैं कि अगर किसी शहरी के पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, वो बाहर जा रहे हैं और उनको विदिन 5 मिनट्स हम इंटरनेशनल लाइसेंस इशू करेंगे और दैट वुड बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द कंट्री इंशाल्लाह। और अब ये हमने 3 अभी माल रोड के ऊपर इस्टेब्लिश किए हैं
अभी तीसरा लग रहा है, एक एयरपोर्ट के लिए बन गया है, और फिर 10 के करीब हम मार रोड के ऊपर प्लान कर रहे हैं, लेकिन 100 का प्लान है पूरे लाहौर में। CTO अतर वहीद ने मजीद बताया कि क्यास सेंटर्स बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स मांगे हैं। क्यास सेंटर्स मुकम्मल होने के बाद रोड्स पर ड्यूटी करने वाले वार्डन्स की शिफ्ट 4-4 घंटे कर दी जाएगी। फंडिंग के लिए हमने अलग से समरी भेजी है। डेफिनेटली हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बजट्स होते हैं, उसमें ये कि एयर कंडीशंस इसके अंदर फैसिलिटी दे रहे हैं। CTO लाहौर अतर वहीद ने मजीद कहा कि क्यास सेंटर्स में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। कैमरामैन इरफान के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। रेलवे सिस्टम पर मुसाफिरों की तादाद में मुसलसल कमी। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें रोज़ाना की बुनियाद पर मनसूख होने लगी हैं। रेलवे इंतज़ामिया ने आज भी 2 ट्रेनों की रवानगी मनसूख कर दी। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखें। ट्रेनों की आमदो रवानगी में घंटों ताख़ीर। रेलवे सिस्टम पर मुसाफिरों की तादाद में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। मुसाफिर कम होने के बायस ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर मनसूख होने लगी। कराची जाने वाली 2 ट्रेनों की रवानगी मनसूख कर दी गई। लाहौर से बरास्ता खानेवाल रहीम यार खान कराची जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एकोमोडेट किया जाएगा। बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कराची एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाएगा। शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में एकोमोडेट किया जाएगा। फैसलाबाद से बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों की टिकटें रिफंड की जाएंगी। ट्रेनें मनसूख होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। ट्रेनें मनसूख और टिकटें रिफंड होने से रेलवे को भी लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेलवे हुकाम का कहना है कि शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिर ग्रीन लाइन की रवानगी से 1 घंटा पहले लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ताकि उन्हें आसानी के साथ एकोमोडेट किया जा सके। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब सोशल सिक्योरिटी का टारगेट के हसूल का सफर जारी है। महकमे ने 9 माह के दौरान 22 अरब 60 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने 9 माह में 92% से ज़ायद कंट्रीब्यूशन कलेक्शन टारगेट पूरा किया है। मार्च में 2 अरब 82 करोड़ रुपए की बड़ी कंट्रीब्यूशन कलेक्ट की गई। मई, जून और जुलाई में 9 अरब 40 करोड़ की मज़ीद कंट्रीब्यूशन कलेक्शन की जाएगी। माली साल का कंट्रीब्यूशन कलेक्शन 32 अरब रुपए का टारगेट पूरा किया जाएगा। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का इस मुताबिक कहना है कि अब तक 92% से ज़ायद कंट्रीब्यूशन कलेक्शन का होना मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की फील्ड टीमें कंट्रीब्यूशन कलेक्शन को यकीनी बना रही हैं। बरतानवी हाई कमीशन ऑफिस लाहौर के सरबराह की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लाहौर दफ्तर आमद हुई, जबकि आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पंजाब राफिया सईद से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मिस्टर वॉर ने पाकिस्तानी IT कंपनीज के आला मियार की तारीफ की और कहा कि ब्रिटिश हाई कमीशन निजी शोबे की तरक्की में पंजाब अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने जून में होने वाले लंदन टेक वेब में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी IT कंपनीज के लिए मौजूदा ताउन का भी जिक्र किया। राफिया सईद ने सयाहों और लॉजिस्टिक के शोबे में TDAP की आइंदा मनसूबाबंदी से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिका शोबों में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन के इम्कान पर तबादला ख्याल हुआ। अफ्रीका ने हुनरमंदी की तरक्की की अहमियत पर भी इत्तफाक किया। फिलहाल इतना ही।